import and export. How many? Please raise the hand. So definitely this will be a learning experience for me also. Friends, economy constitutes major part of society, and economy is a driving force behind the society. Society develops, matures, or it moves only because of economy. And in case of any economy, foreign trade also is a very important component of its economy, and every government has a government organization to look after foreign trade. In case of India, under the Ministry of Commerce and Industry, we have Directorate General of Foreign Trade. I will give details regarding DGFT later on. DGFT has 35 regional offices. State of Gujarat has 4 offices. One is in Surat, another in Baroda, another one in Rajkot, and another in Ahmedabad. DGFT headquarters formulates policy and regional offices implements policy. DGFT headquarters is in New Delhi, Udyog Bhavan. History of DGFT: pre-liberalization and post-liberalization. It is often said that India became, it is factually right also, India became independent in 1947. But Indian citizens got economic independence only in 1991. Because prior to 1991, all of us know that policy of government was different. Our economy was in very nascent stage. Our private sector was not developed properly. Capital was lacking, skill developed people were not available. Due to the colonial history of more than 200 years, everything that sustains economy was destroyed systematically by our imperial powers. So, government through its efforts in order to build Indian economy from scratch, they developed policies. Many times at this stage of our economy, we may feel that those policies implemented in early 50s or in 70s were wrong. But it is wrong according to the present circumstances. But when we consider situation prevailing at that particular time, the policies were quite pragmatic and practical during that period. So this is 1991 is major watershed in the history of Indian economy. Before that, DGFT's name was Chief Controller of Imports and Exports. See, the name itself indicates the difference. After 1991, it's Directorate General of Foreign Trade. तो गुजराती में बात करें तो कैसे कंफर्टेबल रहेंगे? ओके, मतलब जब अनिल साहब भी शुरुआत में बात कर रहे थे इंग्लिश में तो सब शांत थे, तो मुझे लगा तो ठीक है, गुजराती कम आती है। गुजराती हिंदी आपको जो ठीक लगे। गुजराती में अभी ज्यादा नहीं पिकअप किया, हिंदी तो हिंदी में। तो आप देखिए नाम से ही पता चलता है, कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैं बीच में नंदन नीलकंठे उनकी किताब पढ़ रहा था, इमेजिनिंग इंडिया, तो उसमें था ये कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट समझ सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का क्या ये है, मतलब उसके बाद नाम चेंज हुआ, डायरेक्टर जनरल, ये रोल चेंज हो गया, वो इंडिकेट करता है। रोल ऑफ डीजीएफटी देखिए, लिबरलाइजेशन पहले क्या था, रेस्ट्रिक्ट था, प्रोटेक्टिव था। डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी डेवलप ही नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत थी, उसको प्रोटेक्ट करना था। और जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट थे
तो क्या था कि हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफिल करना था। तो ये आप पिक्चर सिर्फ इंडिकेट है, वहाँ एक किताब जो है वो लॉ है, दूसरा डंडा है, मतलब कि रूल इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन देखिए आप, प्रमोटर फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट का रोल चेंज हो गया है। अब जो है 91 के पहले तो हम सोचते थे कि हम खुद बनाएंगे, हमारे कंजम्पशन के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको बाहर से इंडस्ट्री से प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि वो स्टेज ऐसा था कि इंडस्ट्री प्रॉपर्ली डेवलप। लेकिन 91 के बाद हमें लगा कि बाकी दुनिया बहुत आगे जा रही है, बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज ने जिस तरह से पिकअप किया, अपने साथ भी वही, मतलब अपने साथ ही वो इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विद इन 10-15 ईयर्स जो पिकअप लिया इकोनॉमी ने उनके, तो वैसे ही अपने गवर्नमेंट ने सोचा कि अपने को इंडस्ट्री को भी कंपटीशन चाहिए, उसको कम रिस्ट्रिक्शन चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। और पहले जो हमारा था कि पर्पस की अपनी जो खुद की रिक्वायरमेंट ये था, अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट अपना देख ले। लेकिन अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो गया कि अब इंडस्ट्री को ऐसा बढ़ावा दे, एक्सपोर्ट को ऐसा बढ़ावा दे कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, लोगों को रोजगार मिले, फॉरेन एक्सचेंज मिल जाए, जिससे हमें जरूरत की चीजें हैं हम इंपोर्ट कर सके। तो पिक्चर देखिए कि गवर्नमेंट इज शेकिंग हैंड विद बिजनेस पीपल, सो दैट इंडिकेट्स द चेंज इन माइंडसेट। लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग, हम जानते हैं कि हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी कुछ लॉज है। यदि मैं यहाँ कुछ अलग करूँगा तो मैं लॉ के इसमें पकड़ जाऊंगा। मेनी टाइम्स होता है कि किसी ऐसे लोगों को ये होता है कि डाइस पे गए, कुछ बोल दिया तो उसको ये हो जाता है। वैसे है कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें, तो बेसिकली 3 चीज़ें, FTDR एक्ट है हमारा, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 का, उसके बाद है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पहले इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं, इंपोर्ट एक्जिम पॉलिसी बोलते थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। लेकिन क्या है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा है, तो जो सम ऑफ थिंग्स से है बिगर, वो पर्सपेक्टिव लेके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोला जाता है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स रहता है। फंक्शंस ऑफ DGFT, मैंने शुरुआत में ही कहा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दुनिया में कहाँ क्या एक्सपोर्ट करना, हमें कितना करना है, तो ये पॉलिसी बनाती है DGFT। और DGFT बाकी मिनिस्ट्री को साथ लेके, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, फिर इंडस्ट्री बॉडीज है, CII है, FICCI है, आप जैसे ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स रहते हैं, इनसे इनपुट लेके कैसे हम हमारे इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, वो लेके DGFT हेडक्वार्टर पॉलिसी बनाता है। और मैंने शुरुआत में जो कहा कि जो 35 रीजनल ऑफिसेस है, वो जो पॉलिसी बना जाती है हेडक्वार्टर से, वो इम्प्लीमेंट करती है। मतलब अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट टू बिजनेस मैक्सिमम जो है वो लोकल लेवल पे ही, रीजनल ऑफिसेस लेवल पे होता है, हेडक्वार्टर लेवल पे बहुत कम होता है, और मैक्सिमम वो पॉलिसी रिलेटेड ही होता है। की एक्टिविटीज ऑफ DGFT, आप जानते हैं कि बेसिक हमारा, अब इनकम टैक्स भरना है तो हमें पैन की जरूरत है, वैट भरना है तो हमें टीम की जरूरत है, ऐसे होता है। मतलब कि आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जैसे इलेक्शन के लिए हमें वोटिंग कार्ड रहता है वगैरह, उसी तरह से आपको कमर्शियल बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड मस्ट है। अदरवाइज हम फॉरेन में जाते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप से लेके आते हैं, या अपना जो लिमिट अलाउड है उसमें हम ले आ जाते हैं, लेकिन वो कमर्शियल बेसिस पे नहीं है। लेकिन आप जब कमर्शियल बेसिस पे जाएंगे बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना पड़ेगा। ये बहुत ही ईजी, आसान है। सूरत ऑफिस मैनुअल और ऑनलाइन दोनों तरीके से लेता है। एक्चुअली ये फर्स्ट था कि सब ऑनलाइन करने का, लेकिन प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन के लिए सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, तो थोड़ा इसको पोस्टपोन कर दिया है। एक्चुअली 1 जनवरी से होना था, तो अभी हम IEC कोड दोनों बहुत मैनुअल एंड ऑनलाइन मोड में इशू करते हैं। इसके लिए आपको 250 रुपीज़ फी रहती है, और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये प्रोप्राइटरशिप इसमें, और बाकी में आपको मेमोरेंडम वगैरह, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है।
उसके अलावा सेकंड पॉइंट है लाइसेंसिंग रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इफ एनी। जो लास्ट में 2 वर्ड्स है इफ एनी, मतलब यदि कोई, जो था हमारा पहला पॉलिसी था उसमें हर चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत रहती थी। आज ऐसी सिचुएशन है कि आपको बहुत ही कम लिमिटेड चीजों के लिए लाइसेंस की जरूरत रहती है। मेजर मिसकंसेप्शन यही है, मेरे भी बहुत सारे एमबीए के वो दोस्त हैं, उनको लगता है कि डीजीएफटी लाइसेंसिंग का काम करता है। लाइसेंसिंग का काम हमारा अब सिर्फ 5% भी नहीं है। तो जितना भी हमारा जो ट्रेड आइटम्स है उसमें से ऑलमोस्ट 99% यू कैन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विदाउट एनी लाइसेंस। सो बेसिक कंसेप्ट ये है कि जितना भी रेस्ट्रिक्शन था, लाइसेंसिंग था, वो वर्क खत्म हो गया है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव स्कीम। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट देख लेंगे। और ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, जो साहब ने बोला था कि आप ईपीसीसी स्कीम है या फोकस मार्केट है, फोकस प्रोडक्ट है, इसके हम डिटेल्स आगे देखेंगे। डीजीएफटी टू एक्सपोर्टर्स, इंसेंटिव स्कीम और एग्जेम्पशन स्कीम। इंसेंटिव स्कीम और एग्जेम्पशन स्कीम में आप वर्ड से ही पता चल जाता है। एग्जेम्पशन मीन्स आपको एग्जाम किया जा रहा है, उससे आपको छूट दी जा रही है। इंसेंटिव मतलब आपको एक तरह से बख्शिश मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, वो है। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। इसमें 4-5 स्कीम्स है। फोकस मार्केट है, फोकस प्रोडक्ट है, मार्केटिंग फोकस प्रोडक्ट है, विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग है, सर्व फ्रॉम इंडिया स्क्रिप है, ये सर्विस सेक्टर के लिए है। एग्जेम्पशन स्कीम में 3 है, एडवांस है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन है, ईपीसीजी है। इसमें एग्जेम्पशन में फोकस मार्केट स्कीम है। ट्रेडिशनली जो हमारा बिजनेस है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है या मिडल ईस्ट है, इससे रहा है, क्योंकि यहाँ बिजनेस करना रिलेटिवली बहुत ईजी है। वहाँ के बैंक्स मैच्योर है, वहाँ के जो क्लाइंट्स है रिलेटिवली प्रॉपर बिजनेस टर्म्स है, वहाँ की जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल रहती है, तो वहाँ बिजनेस करना रिलेटिवली बहुत आसान है। लेकिन जैसे है कि अफ्रीका हो गया, फिर साउथ अमेरिका हो गया, फिर जो रशिया के जो टुकड़े होने के बाद जो CIS कंट्रीज हुए हैं, वो देखिए वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका ज़्यादा है, वहाँ प्रॉपर अपने बैंकिंग चैनल्स डेवलप नहीं है, उसमें रिस्क है, उसमें आपको कभी कभी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। बहुत अफ्रीका में जाएंगे तो आप बहुत सारे मार्केट लैंडलॉक मार्केट है, वहाँ से सी पोर्ट से अंदर जो अपना जो माल ले जाना, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। ये सब ऑफसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने फोकस मार्केट स्कीम लॉन्च किया है। बहुत सारे स्कीम्स, ये जनरल परसेप्शन है बहुत लोगों का कि WTO अलाउ नहीं करता, फिर भी इंडिया कैसे दे रहा है। WTO ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए सपोर्ट देने की बात करता है, और उन देशों के लिए जहां पर कैपिटल इनकम $1000 से नीचे हो। अब फॉर्चुनेटली हमारा $1000 हमने 2-3 साल पहले ही क्रॉस किया है, लेकिन WTO अभी उतना ये स्ट्रिक्ट नहीं रहा, और जो इकोनॉमिक रिसेशन वगैरह हो गया था, ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, बिजनेस स्लोडाउन था, इसलिए अभी तक इसके खिलाफ स्टेप्स नहीं लिए गए। जनरली जितना भी आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, इसके 3% है, कुछ कंट्रीज के लिए 4% भी है। तो इसमें आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, लेकिन स्क्रिप्ट इशू करते हैं। तो इसको स्क्रिप्ट को आप जब किसी चीज़ को इंपोर्ट करने वाले हैं, उसकी कस्टम ड्यूटी डेबिट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या आप खुद यूज नहीं करते हैं, मतलब आपका सिर्फ एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आपका कुछ इंपोर्ट नहीं है, तो आपका कोई फ्रेंड या पहचान वाला कुछ इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको आप दे सकते हैं। मतलब ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब आप नहीं यूज करना चाहते तो किसी और को दे सकते हैं। वैसे विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, इनको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए है। जनरली 5% बेनिफिट रहता है। बहुत सारे सूरत में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल और डायमंड के अलावा भी कुछ फूड प्रोसेसिंग में आ रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट्स है। तो वही स्क्रिप्ट इशू हो जाता है, वो एक तो आप खुद यूज कर सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं। जनरली इसमें 5% होता है, कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसमें 7% भी है। मतलब
जो आप जूस वगैरह है उसमें 5% है, लेकिन ग्रेप के जो रीजन्स वगैरह है उसके लिए 7% है, लेकिन ऑन एन एवरेज वो 5% बेनिफिट है। उसके बाद फोकस प्रोडक्ट स्कीम है। ये प्रोडक्ट स्कीम उन प्रोडक्ट्स के लिए, ये स्कीम उन प्रोडक्ट्स के लिए है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ 10 इंजीनियर लगेंगे, लेकिन 1 करोड़ का टेक्सटाइल आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको लगभग 50-60 लोग काम दे सकते हैं, लोगों को आप काम दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या है कि आप एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं, फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न हो जाए अपने कंट्री को, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो जाए। बहुत साल 2-3 साल पहले यही बात चल रही कि इंडिया ग्रोथ हो रहा है, इंडिया की ग्रोथ हो रही है 7% 8%, बट पीपल बोल रहे थे दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। तो हमें हमारे और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में यही फर्क है। आप देखिए फॉरेन दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मतलब हमें लगता है चाइना है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जर्मनी की सिर्फ देखिए 15 करोड़ आबादी है और हमारी 120, मतलब लगभग 8। तो देखिए तो वहाँ जो है वो वैल्यूएडेड गुड्स है, तो स्पेशलाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके पास उतनी पॉपुलेशन नहीं है कि जिसको रोजगार देने की जरूरत है। लेकिन हमारा देश में है, हमें फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करना है, साइमल्टेनियसली ऐसे इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंटेंसिटी ज़्यादा हो। तो जैसे सेक्टर्स है, टेक्सटाइल है, बाकी इंजीनियरिंग सेक्टर्स है, इसमें बेनिफिट दिए जाते हैं। इसमें जनरली 2% है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए इवन 5% है, कुछ प्रोडक्ट के लिए 7% है। मैंने ऑब्जर्व किया है सूरत या गुजरात वगैरह, यहाँ लोग कभी कभी इंसेंटिव लेके बिजनेस करते हैं, जिसमें ज़्यादा इंसेंटिव है उसको उस सेक्टर को टारगेट करते हैं। तो ये है, ये भी आप जो है इसमें स्पेशल फोकस प्रोडक्ट में जिसमें ज़्यादा इंसेंटिव है, ये भी इसमें फ्री ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट मिल जाते हैं आपको। उसके बाद है सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये सर्विस सेक्टर के लिए है। पहले तो 2011 के पहले ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज के लिए था, लेकिन अब इसमें अपेंडिक्स 41 आ गया, उसमें लिमिटेड सर्विसेज है। मैं आपको बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो आप सर्विसेज रेंडर करते हैं। अभी तो आप यहाँ डोमेस्टिक मार्केट कैटर कर रहे हैं, लेकिन मुझे जब लोग मिलने आते हैं ऑफिस में, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अफ्रीका से इंक्वायरी आ रही है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऑडिट वगैरह ये सब के लिए। जब आप फॉरेन के लोगों को सर्विस देंगे, WTO में 4 तरह से आप सर्विस देने के ये है। एक तो क्लाइंट आपके पास आ जाए या क्लाइंट को आप सर्विस देने के लिए जाए, मतलब यहाँ जो ताज का होटल है, यहाँ आके कोई फॉरेनर ठहरे, वो मोड फर्स्ट हो गया। ताज का मॉरिशस में होटल है, मालदीव्स में होटल है, वहाँ कोई फॉरेनर आके रह रहा है, ताज इंडिया के लिए वहाँ डॉलर अर्न करके इंडिया भेज रहा है, तो एक प्रकार का वो भी एक्सपोर्ट है सर्विसेज। तो या आपका फ्रेंचाइजी है, या आप ऑनलाइन भी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग या अपना जो है, तो इसमें से आप ये सर्विस सेक्टर के लिए है। इसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन अपने खुद कंजम्पशन के लिए, मतलब यहाँ सूरत में इतना सर्विस सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे उसकी वजह भी है मुंबई में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस क्योंकि आते हैं, ऑलमोस्ट सभी कंपनी के हेडक्वार्टर्स या मेन ऑफिसेस मुंबई में होते, तो वहाँ यहाँ सूरत में सिर्फ 2 ही है, वो भी होटल इंडस्ट्री है, एक तो ताज है और दूसरा लॉर्ड सीन है। तो ये बेसिकली होटल इंडस्ट्री के लिए है, जिसमें 10% है, मतलब टेक्सटाइल के लिए 2% है, इसमें एग्रीकल्चर के लिए 5% है, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए 10% है। तो इसमें वो जो है स्क्रिप इशू हो जाता है, उससे आप फर्नीचर या आपके कंज्यूमेबल आइटम्स है सर्विस सेक्टर में, वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये पहले जो बोले मैंने वो रिवार्ड स्कीम थे, इंसेंटिव था, मतलब आपको एक रिवार्ड दिया जा रहा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद आता है ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। इंटरनेशनल बिजनेस का एक बेसिक रूल है कि देयर शुड बी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट देयर शुड नॉट बी एनी एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेस, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो इसके बेसिस पे हम ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स दे देते हैं। उसमें 3 स्कीम्स है बेसिकली। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन किसी को कभी भी कुछ डाउट्स है आप बेहिचक पूछ सकते हैं। एक्चुअली मुझे तो लग रहा है
सबको समझ में आ रहा है या किसी को Those which is relevant, people are understanding. ओके। तो पहले तो हमने इंसेंटिव स्कीम्स देखी, अब ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम है जिसमें आपको लीगली ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है। मतलब इसमें दो स्कीम्स है, एक तो रॉ मटेरियल्स के लिए है और दूसरा कैपिटल गुड्स के लिए। रॉ मटेरियल में दो स्कीम्स है, एक एडवांस ऑथराइजेशन और दूसरा है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। इसमें दो स्कीम में डिफरेंस ये है कि वैल्यू एडिशन और ट्रांसफरेबिलिटी का। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में आपको 15% वैल्यू एडिशन करना है, कुछ प्रोडक्ट्स में कम है लेकिन वो एक्सेप्शनल आइटम्स है। ऑन एन एवरेज आपको 15% करना है एडवांस ऑथराइजेशन में। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में आपको 20% है, इसलिए कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन आप फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जैसे चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट्स जो इंसेंटिव स्क्रिप्ट्स है, जैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो वैसे डीएफआई आप एक्सपोर्ट करके डीएफआई अर्न करके किसी को मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन एडवांस ऑथराइजेशन में सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, एक्चुअल यूजर कंडीशन है उसमें। तो एडवांस ऑथराइजेशन में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल आपको फॉरेन से लेना है तो आप ड्यूटी फ्री ले सकते हैं। उसमें आपका कस्टम ड्यूटी और उसकी जो बाकी ड्यूटी है वो नील हो जाता है। और उसके बाद उस जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसमें वैल्यू एडिशन करके आपको आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करना है। देखिए इंसेंटिव स्कीम में आपको ऑब्लिगेशन यह था कि आपको पहले एक्सपोर्ट करना है और आपको फिर क्लेम करना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना है, वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली किसी का नहीं होता है तो फिर आपको ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट भर के आप इसको रेगुलराइज या क्लोज कर सकते हैं। ये रॉ मटेरियल के लिए हो गया। उसके बाद कैपिटल गुड्स के लिए, जैसे अनिल जी बोल रहे थे और मैंने भी देखा यहाँ मुंबई में और यहाँ सूरत में यही डिफरेंस है। मुंबई भले ही इकोनॉमिक कैपिटल हो लेकिन सूरत एंटरप्रेन्योर्स कैपिटल है, क्योंकि मैंने यहाँ रियलाइज किया लोग आईसी लेते हैं फर्स्ट वीक में, बाकी प्रोसीजर्स कंप्लीट करते हैं, 3-4 वीक में यूपीसीसी एप्लीकेशन मतलब कैपिटल गुड्स मशीनरी के लिए आ जाते हैं। मतलब दैट इज गुड। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि इसमें मिसयूज भी हो सकता है। अब मिसयूज करने जो है आप कितना भी कुछ भी करेंगे तो 10-15 लोग है, लेकिन हम जो बड़ा पिक्चर है हमारे पास 80-85-90% लोग है जो जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हैं। और सूरत की खासियत यही है कि यहाँ हमें एक कंपनी के रिपीटेड एप्लीकेशंस नहीं आते, बल्कि लोग आ रहे हैं, आईसी ले रहे हैं और मशीनरी ला रहे हैं,